आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। हैदराबाद और मुज़फ़्फ़राबाद में तालाबों और झीलों की अराज़ियात के लिए हाइड्रा का क़याम, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने की वज़ाहत। क्या FTL अराज़ियात पर तामीर करदा सरकारी दफातर और इमलाक को तोड़ा जाएगा? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत से किया सवाल। गंडीपेट FTL अराजी पर हाइड्रा की निदामी कार्रवाइयाँ हक़ बजानिब, गंडीपेट वॉकर्स एसोसिएशन ने कार्रवाई का किया खैरमकदम। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम जारी, रॉयल कॉलोनी बालापुर में की गई नाकाबंदी। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज कोकापेट में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए बताया कि हैदराबाद के शहरियों को पीने के पानी की सरबराही के लिए निज़ाम सरकार ने उस्मान सागर और हिमायत सागर की तामीर करवाई थी। उन्होंने कहा कि निज़ाम सरकार ने हैदराबाद शहर को हेरिटेज सिटी के साथ साथ झीलों और तालाबों के शहर में तब्दील करते हुए एक नई तारीख़ रक़म की थी, लेकिन गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान इन तालाबों और झीलों के अतराफ़ में कब्ज़े जात करते हुए गैर क़ानूनी तामीरी काम किए गए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत तालाबों और झीलों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हाइड्रा का क़याम अमल में लाते हुए उसके कमिश्नर को गैर क़ानूनी तामीरात को निज़ाम करने के लिए मुकम्मल इख्तियारात देने पर अपोजिशन जमातें बौखलाहट का शिकार हो चुकी हैं और हुकूमत और हाइड्रा के कमिश्नर्स पर बुनियादी तनक़ीदें की जा रही हैं। इस तक़रीब से वज़ीर सनत श्रीधर बाबू और दीगर ने भी खिताब किया। ఈ ప్రజలకు కోట్లాది మంది దాహార్తిని తీర్చే ఈ యొక్క చెరువులను శ్రీమంతులుగా గొప్ప వ్యక్తులుగా ఉన్న వాళ్ళు వాటి పక్కనే ఫామ్ హౌస్ల పేరు నిర్మించుకొని వాళ్ళ డ్రైనేజ్ కాలువలు తీసుకెళ్ళి గండిపేటలో కలిపినారు. నేను ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలతో పాటు ఇక్కడ వచ్చిన భక్తులను నేను ఒకటే మాట అడగదలుచుకున్నా. ఇవాళ వాళ్ళ విలాసవంతమైన జీవితం కోసం నిర్మించుకున్న ఫామ్ హౌస్ల నుంచి వచ్చే డ్రైనేజ్ గండిపేటలో హిమాయత్ సాగర్ తాగునీటిలో కలిపితే ఆ నీళ్లు హైదరాబాదు నగరానికి తాగడానికి సరఫరా చేస్తుంటే వాళ్ళు నిర్మించిన అక్రమ నిర్మాణాలను వదిలేస్తే ఇక నేను ప్రజాప్రతినిధిగా విఫలమైనట్ట కాదా మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. అందుకే ఒత్తిడి వచ్చినా మిత్రులకు ఫామ్ హౌజులు ఉన్నా ఏవి వదలకుండా హైడ్రా అనే ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి తెలియకుంటేనే ప్రజాప్రతినిధులం కొన్ని మన దినచర్యల్లో భాగంగా కొన్ని తప్పిదాలు చేస్తుంటాం. తప్పులు తెలవకుంటేనే కొన్ని తప్పులు జరిగిపోతుంటాయి. మరి ఆ ఖాతాను సవరించుకోవడానికి, ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్ను సవరించుకోవడానికి తెలిసి కొన్ని మంచి పనులు చేయాలని నేను ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తున్నా, నమ్ముతున్నా. ఆ తెలిసి చెయ్యాలనుకుంటున్న మంచి పనుల్లో భాగము ఈ చెరువులను చెరబట్టిన వాళ్ళ నుంచి విముక్తి కలిగించాలన్న ఏకైక లక్ష్యంతోనే ఈరోజు చెరువులను ఆక్రమించుకున్న వాళ్ళను ఎవరిని వదలకుండా ఉక్కు పాదంతో అణచివేయాలన్న ఆలోచన, అందులో నిర్మాణాలను ఏ ఒత్తిడి వచ్చినా వెనక్కి తక్కకుండా తొలగించాలన్న ఆలోచనతోనే ఈరోజు ఈ చెరువులను కాపాడే కార్యక్రమాన్ని నేను తీసుకుంటున్నా. నాకు తెలుసు ఈ చెరువులలో నిర్మాణమైన విలాసవంతమైన ఫామ్ హౌజులు ప్రభుత్వాన్ని ప్రభావితం చేయగలిగిన స్థానాలలో ఉన్న చాలామంది వ్యక్తులు ఉన్నారు. ప్రత్యక్షంగా ప్రభుత్వంలో భాగస్వాములు అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే సమాజం మీద బాగా ప్రభావితం చేయగలిగిన వ్యక్తులు ఉండొచ్చు. కానీ వాటన్నిటినీ నేను పట్టించుకోదలుచుకోలే. ఇది భవిష్యత్ తరాలకు, ఇది రాజకీయాలకు సంబంధం లేదు. నేను స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నా. రాజకీయాల కోసమో
లేకపోతే రాజకీయ నాయకులను కొంతమందిని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేపడుతున్న కార్యక్రమం కాదు ఇది. భవిష్యత్ తరాలకు, మన పిల్లలకు, వాళ్ళ పిల్లలకు వారసత్వంగా మనం అందించే సంపద ఈ సరస్సులు, ఈ నదులు, లేకపోతే ఈ రోజున్న ఈ చెరువులు. ఈ ప్రకృతి సంపదను మనం విధ్వంసం చేస్తే ప్రకృతి మన మీద కక్ష కడుతుంది. ప్రకృతి మన మీద ప్రకోపిస్తే మనం చెన్నైలో చూసినాం, అదేవిధంగా ఉత్తరాఖండ్లో చూసినాం, నిన్నగాక మొన్న వాయనాడు మనం కేరళలో చూసినాం. ఈరోజు ఇలాంటివన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ హైదరాబాదు నగరాన్ని రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉన్నది. ఇది ఒక సుందరమైన నగరం. ఈ నగరానికి ఈ చెరువులే ఒక అందం. ఈ చెరువులను కాపాడే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. ఎవరు ఏమనుకున్నా, ఎవరు ఏ ఒత్తిడి తెచ్చినా వాటన్నిటిని పక్కన పెట్టి చెరువులను ఆక్రమించుకున్న వాళ్ళ భరతం పడుతుంది ఈ ప్రభుత్వం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియదలుచుకున్నాను. सदर मजलिस तो रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहर में जारी हाइड्रा की इन्हदामी कार्रवाइयों पर रद्दमल देते हुए रियासती हुकूमत से सवाल किया कि क्या वो फुल टैंक लेवल FTL इलाक़ों पर बने सरकारी दफातर को मुनहदिम कर देगी। इतवार 25 अगस्त को मजलिसी हेडक्वार्टर दारुसलाम में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने पूछा कि क्या वो सरकारी दफातर को मुस्मर कर देंगे। क्या कांग्रेस हुकूमत हुसैन सागर में बनाए गए सरकारी दफातर को मुनहदिम करेगी। क्या हुकूमत जो FTL में इमारतें मुनहदिम कर दी गई हैं वो हुसैन सागर में तामीर की गई इमारतों को भी गिराएगी। क्या वो निकलिस रोड को भी तोड़ देंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत से कई ऐसे चुभते हुए सवालात किए। हमने हमारे कॉरपोरेटर्स ने मेयर साहिबा से कमिश्नर के पास जाकर वो जो हाइड्रा बनाया गया है उसको हमने बताया है कि वो उसका कोई लेजिस्लेटिव लीगल बैकिंग नहीं है, उसको वो पब्लिक डोमेन में है। और फिर हमारे MLA कौसर साहब जाकर चीफ सेक्रेटरी को भी बोले हैं, ये बात हम बोले हैं। और तीसरी बात ये है कि GHMC का जो ऑफिस है, अभी GHMC का ऑफिस है ना, तो हम लोग जो है हमारे स्कूल में जब हम लोग बस में जाते थे, हैदराबाद पब्लिक स्कूल को बस में जाते थे, मेरे को अच्छी तरह याद है हमारी जो बस होती थी वापसी में ऐसा आती थी, या फिर कभी कभी मैं पब्लिक स्कूल को जाता था बस पकड़ के, एक बस नंबर 7 होती थी, अभी भी होंगी, डबल डक्कर में बैठ जाता था मैं, ऊपर बैठने का बड़ा शौक था मेरे को। हाँ, वो लिबर्टी से जाती थी, लिबर्टी से टैंकबंद जाती थी। वहाँ पर जहाँ पर GHMC का ऑफिस है वहाँ पर एक वाटरफॉल था, मैं ही देखा सो हूँ। नेकलेस रोड FTL पर है, तोड़ो उसको आप। नेकलेस रोड FTL पे है, बोल रहा हूँ मैं आपको, तोड़ते आप उसको। तोड़ना चाहिए ना भाई, कौन रोक रहा आपको। FTL है, CCMB का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है हिमायत सागर के पास, बना लिया आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है, ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है। और फिर जहाँ पर निज़ाम के ज़माने में जब उन्होंने हुकूमत थी उनकी, तो उन्होंने एक उसको क्या बोलते, टोन बोलते, क्या बोलते हो, पत्थर को, हाँ नहीं, वो स्टोन्स लगाते थे कि ये FTL है, स्टोन्स लगाते थे, अभी भी है वो, देख लो आप जाके। ये है हमारा, हम तो चीफ सेक्रेटरी मैडम को भी बोले, मेयर साहिबा को भी बोले, अब वो गवर्नमेंट देखना उसको। BRS रुकन असम्बली हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपोजिशन बिलखुसूस BRS कायदीन से सियासी इंतकाम लेने के लिए हाइड्रा का इस्तेमाल करते हुए निदावी कार्रवाई कर रहे हैं। हरीश राव ने बताया कि चाहे BRS अरकान असम्बली मल्ला रेड्डी, राजशेखर रेड्डी, B राजेश्वर रेड्डी के कॉलेजेस कोई गैर कानूनी तौर पर तामीर नहीं किए गए हैं,
उन्होंने कहा कि हैदरा की जानिब से निदामी कार्रवाई रातों रात करने का तरीक़ेकार ठीक नहीं है, पहले नोटिस दी जानी चाहिए। चूँकि मेडिकल कॉलेजेस में भारी कीमत के इंस्ट्रूमेंट मौजूद होते हैं। हरीश राव ने कहा कि रियासत में डेंगू बुखार की वजह से तेज़ी के साथ फैल रही है और एक बेड पर 3-3 मरीज़ मौजूद हैं। हुकूमत इस जानिब तवज्जो देने की बजाय अपोजिशन पर तनकीदें करने में अपना वक्त ज़ाया कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के खर्चात की माफ़ी के मामले में ख़ुद वज़ीर आला और काबिने वज़रा के बारे में तज़ाद पाया जाता है। ज़िले रंगारेड्डी के गंडीपेट में गंडीपेट वॉकर्स एसोसिएशन की जानिब से डिज़ास्टर मैनेजमेंट हाइड्रा की तश्कील का खैर मकदम करते हुए इसकी तायीद की गई है और आज इस सिलसिले में एक रैली मुनज़्ज़म करते हुए सैकड़ों अफराद ने अपने हाथों में तायीदी बैनर्स थामे हुए हिस्सा लिया। गंडीपेट वॉकर्स एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों ने बताया कि उस्मान सागर तालाब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके अतराफ़ व अकनाफ़ किए गए कब्ज़ेजात और गैर क़ानूनी तामीरात को इंहदाम करना और कब्ज़ेजात को बर्खास्त करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से हाइड्रा के क़याम की सताइश करते हुए उनसे इज़हार तशक्कुर किया और बताया कि गंडीपेट के अलावा शहर के दीगर तालाबों और झीलों के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाना ज़रूरी है। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस स्टेशन पर पथराव और बुलडोज़र के ज़रिए हाजी शहजाद अली की हवेली को मुस्मार करने के वाक़े की मज़म्मत की है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि मैंने हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा है। सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज आपके पास इख्तिदार है, कल आपके पास इख्तिदार नहीं रहेगा और कोई दूसरी जमात आएगी तो क्या वो हुकूमत आपकी ज़िम्मेदार लोगों और उनके घरों को बुलडोज़र से गिरा देना चाहिए? क्या आपको मुंह काला करके सड़क पर परेड करवाना चाहिए? सदर मजलिस ने पूछा कि आप जो कर रहे हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है क्या? हाजी शहजाद अली का वीडियो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, जिसमें हाजी शहजाद अली ने कहा कि 21 अगस्त के दिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन है छतरपुर में मध्य प्रदेश में, उलेमा भी है, जाकर रिप्रेजेंटेशन दिए। क्या रिप्रेजेंटेशन दिए कि एक अहमक जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास बोलने की कोशिश किया, उसके ख़िलाफ़ आप एक्शन लीजिए, एफआईआर रजिस्टर करो। वहाँ पर एडिशनल एसपी थे, डिप्टी कमिश्नर थे, एसडीएम साहब थे। एक मजमा जमा हो गया, उन्होंने खुद बोल रहे, पथरमबाजी शुरू हुई तो एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर को बोले कि भाई जाके समझाओ। वो बाहर निकले, हाजी शहजाद पर ही पत्थर पड़े। उसके बाद खैर मामला बढ़ गया, वो चले गए अपने घर को। तो आप जो है हाजी शहजाद अली के 20,000 स्क्वायर फुट के घर को बुलडोज़र लाकर आप डिमोलिश कर दिए विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। अरे वो 3 गाड़ियां हैं फॉर्च्यूनर, 30-30 लाख के 3 गाड़ियां हैं, उसको आप पूरा बर्बाद कर दिए। ये कितना हेट्रेड है बीजेपी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट में मुसलमानों के बारे में। आप पूरे घर को तोड़ दिए, उसके गाड़ियों को आप पीस दिए और फिर जो एलिज एक्यूज को आप पकड़ के रात भर पुलिस स्टेशन में मारे। उन लोगों को चल नहीं सक रहे वो लोग, और उनको आप उन रोड पे चला के बोल रहे नारे लगाओ। हम बीजेपी वालों को ये बोल रहे कि पावर इटर्नल नहीं है। आज आप सत्ता में, कल आप नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर कल दूसरी सरकार आकर आपके घर को बुलडोजर से तोड़ेंगी, आपका घर महफूज रहेगा? आपको भी पकड़कर रोड पे चलाया जाएगा तो क्या बोलेंगे आप? ये देश और मध्य प्रदेश को रूल ऑफ लॉ से चलना चाहिए, मॉब रूल से नहीं चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को चूम रहे हैं तो फिर उनको बताया जाए कि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं आप। ये बुलडोजर जाके तोड़ दे रहे आप और बोल रहे नहीं इलीगल था। तो इलीगल आपको उसी दिन मालूम हुआ, पहले नहीं मालूम हुआ? उसके गाड़ियों को क्यों तोड़ा आपने?
आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बीजेपी कलेक्टिव पनिशमेंट दे रही है। और जो लोग आज सत्ता के नशे में, गुरूर में आकर बुलडोजर से मुसलमानों के घरों को तोड़ रहे हैं, याद रखो गरीब की बद्दुआ तुम लोगों को बर्बाद करेंगी। और गरीब चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, तो उसकी बदुआ तुमको बर्बाद करेंगी। जो लोग आज बुलडोजर से अपनी ताकत के मजाहरे कर रहे, कल इलेक्शन आएगा तो पब्लिक अपने वोट के जरिए तुमको डिमोलिश करेंगे इंशाल्लाह। और ये होने वाला है। जो कोई भी बुलडोजर के जरिए गरीबों के घरों को तोड़ रहा, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे इख्तिदार के महल भी डिमोलिश होंगे एक दिन। हुकूमत तेलंगाना अगले तालीमी साल में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी क़ायम करेगी जिसका मकसद ऐसे खिलाड़ी पैदा करना है जो ओलंपिक तमगे जीत सकें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इतवार को ये बात बताई। उन्होंने ऐलान किया कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खिलाड़ियों को तरबियत देने के लिए बैनुल-अक़वामी कोचेस की खिदमत हासिल की गई हैं। उन्होंने ऐलान किया कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खिलाड़ियों को तरबियत देने के लिए बैनुल-अक़वामी कोचेस की खिदमत हासिल करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मनसूबाबंदी यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी की तर्ज पर की गई है, जो हाल ही में मुख्तलिफ शोबों में नौजवानों को हुनर फराहम करने के लिए क़ायम की गई है। वज़ीर आला गच्चीबौली स्टेडियम में NMDC हैदराबाद मैराथन की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। వరల్డ్ ఛాంపియన్ క్రికెట్ సాధించిన సిరాజ్కి ప్రభుత్వం వైపు నుంచి గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ పోస్ట్ ఇవ్వడమే కాకుండా గతంలో మెడల్స్ సాధించి ఈసారి ఒలింపిక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన నిఖత్ జరీన్ స్టేజ్ మీద ఉన్నారు. వారికి 2 కోట్ల రూపాయల నగదును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రోత్సాహకంగా ఇవ్వడమే కాకుండా డిఎస్పి కాడర్ పోస్ట్, డైరెక్ట్ గ్రూప్ 1 పోస్ట్ కూడా మన క్యాబినెట్లో అప్రూవల్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న యువతను క్రీడల వైపు మళ్ళించాలి, క్రీడల వైపు ఆసక్తిని పెంచాలి అని సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తుంది, ఆలోచించి. అందుకే ఈరోజు సండే అయినా ఇతర కార్యక్రమాలున్నా హైదరాబాద్ రన్నర్స్ ఆర్గనైజ్ చేసిన ఈవెంట్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధినేతగా ముఖ్యమంత్రిగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న యువతకు ఒక సందేశాన్ని పంపాలని ఈరోజు నా సహచర మంత్రి ప్రభుత్వ భాగస్వాములందరినీ కూడా తీసుకొని ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి మళ్ళీ పూర్వ వైభవం తీసుకొచ్చే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. ఈ గచ్చిబౌలి స్టేడియం, ఈ స్పోర్ట్స్ విలేజ్ను ఆ రోజు 25 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించి దూరదృష్టితో ఈ స్పోర్ట్స్ విలేజ్ను ఆ రోజు నిర్మించడం జరిగింది. ఈ స్పోర్ట్స్ విలేజ్ని 100% మళ్ళీ క్రీడా కార్యక్రమాలకే వినియోగించాలన్న ఆలోచన ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నది. ఇదే కాకుండా మొన్నటి ఒలింపిక్స్లో మనం అంత గొప్పగా పర్ఫామ్ చేయలేకపోయినాం. మళ్ళీ 2028లో ఒలింపిక్స్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచే అత్యధికంగా మెడల్స్ సాధించాలన్న లక్ష్యంతో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం క్రీడల్ని ప్రోత్సహించాలన్న ఆలోచన చేసి ఈ మధ్యకాలంలోనే స్కిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలి, డిగ్రీ పట్టాలు పొందితే ఉద్యోగాలు రావన్న ఆలోచనతోని యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. అదే కోణంలో లాస్ట్ వీక్ నేను సౌత్ కొరియాని విజిట్ చేయడం జరిగింది. సౌత్ కొరియన్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని పర్సనల్గా నేను విజిట్ చేసి అక్కడ ఆర్చరీలో 3 గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించిన ఒక గర్ల్ని కలిసి అక్కడ యూనివర్సిటీ మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడి ఒక స్పోర్ట్స్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మేము అభివృద్ధి చెయ్యాలి అంటే వాళ్ళ సహకారం
तेलंगाना के साबिक वजीर और बीआरएस लीडर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस में अदम शमूलियत पर बीआरएस लीडरान के खिलाफ केसेस दर्ज करने की धमकियां दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने पी राजेश्वर रेड्डी को हिरासा किया है। उन्हें माली नुकसान पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ 6 केसेस भी बुक किए गए हैं। రేవంత్ రెడ్డి గారు కొంతమందిని టార్గెట్ పెట్టుకొని ఇవాళ ఆయన పార్టీలో చేరాలి. అయితే కండువా కప్పుకోండి, లేకపోతే మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతాం, మీ మీద అక్రమ కేసులు పెడతాం, మీ ఆస్తులు కూల్చేస్తాం అనే ధోరణితో ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం పనిచేస్తా ఉంది. మనకు కనబడతలేదా? పటాన్చెరు ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డి గారి మీద అక్రమ మైనింగ్ కేసులు పెట్టి నువ్వు 300 కోట్ల ఫైన్లు వేసి ఆయనను నానా ఇబ్బందులు పెట్టి ఇప్పుడు కండువా కప్పినం అయిపోయింది. కండువా కప్పంగానే మైనింగ్ కేసు అటకెక్కింది, కేసులు మూలకపడ్డాయా లేవా? అదే రకంగా నువ్వు పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారి మీద ఒత్తిడి చేస్తున్నావు, పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారిని ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తున్నావు. ఆయన నిక్కచ్చిగా నిజాయితీ కలిగిన నిబద్ధత కలిగిన నాయకుడు కనుక ఇవాళ ఆయన మీద ఎన్ని కేసులు? పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారి మీద ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు 6 కేసులు పెట్టినారు. ఏదో ఒక రకంగా మానసికంగా ఇబ్బంది పెట్టాలి, పొలిటికల్ గా ఇబ్బంది పెట్టాలి, ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పెట్టాలి అని రకరకాల కుట్రలకు రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఇవాళ ప్రయత్నం చేస్తాం. मुंबई से हैदराबाद आने वाला एक खानगी हेलीकॉप्टर कल हफ्ते को पुणे ज़िले के पोटगांव में गिरकर तबाह हो गया। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि चारों मुसाफिर इस हादसे में बच गए, ताहम उन्हें चोटें आई है। पंकज देशमुख, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुणे रूरल ने बताया कि हेलीकॉप्टर खानगी एविएशन कंपनी का है। ये मुंबई से हैदराबाद जा रहा था। हेलीकॉप्टर में 4 लोग सफ़र कर रहे थे। पंकज ने बताया कि इस हादसे में मामूली चोटें आई हैं और हादसे की तहकीकात की जा रही है। गिर गया हेलीकॉप्टर। तेलंगाना महकमे आबकारी के हकाम की जानिब से हैदराबाद और रंगारेड्डी अजला में बड़े पैमाने पर पब्स की तनखी की गई है। अहदेदारों ने 25 पब्स का मुआयना किया। वहाँ आने वालों की जानिब से ड्रग्स के इस्तेमाल की भी जांच की गई। बताया जाता है कि इन मुआयनों में किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। एक्साइज इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने बताया कि पब्स में मंशियात के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत में गांजा और मंशियात की रोकथाम के लिए तमाम महकमों को चौकस कर दिया गया है। ख़ास तौर पर पुलिस और महकमे आबकारी के हकाम की जानिब से ड्रग्स की फ़रोख्त और इस्तेमाल के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है। नलगुंडे के नेडामानूर में बेटे ने मां का कत्ल करके खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि जालिम बेटा शिवा की शादी 3 साल कबल अपनी भांजी मेघना से हुई थी। दोनों के दरमियान झगड़ों के बायस अलहदगी हो गई, लेकिन मेघना के घर वालों ने कल उसकी दूसरी शादी कर दी। शिवा के घर वालों ने भी मेघना की दूसरी शादी में शिरकत की, लेकिन शिवा की माँ साइमा घर पर ही थी। शिवा ने ख्वाबिदा मां पर चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया और ख़ुदकुशी कर ली। शादी से वापसी के बाद साइमा के शौहर और महलूक के वालिद ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। महलूक शिवा के दोस्तों ने कहा कि शिवा चंद दिनों से जहनी अजियत में मुब्तला था।
बालापुर पुलिस की जानिब से नाकाबंदी ऑपरेशन रॉयल कॉलोनी बालापुर में किया गया। इस ऑपरेशन की क़यादत सुनीता रेड्डी महेश्वरम डिवीज़न ने की, जबकि ऑपरेशन के दौरान 63 गाड़ियों के अलावा दीगर अशिया भी जब्त की गईं, जबकि मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया। आज रॉयल कॉलोनी बालापुर पुलिस स्टेशन राचकोंडा कमिश्नरेट रॉयल कॉलोनी में सरप्राइज चेक्स कंडक्ट करे। सीपी सर के जो इंस्ट्रक्शंस के अनुसार सरप्राइज प्रोसीडिंग्स लेके पूरा इंतज़ाम करके स्पेशल पार्टीज़, एआर पार्टीज़, एसओटी, एसबी, लोकल पुलिस फोर्स पूरा अबाउट 200 मेंबर्स को इन्वॉल्व करके और लोकल कैंप लीडर्स को और लोकल जो पब्लिक इधर रहते हैं उनका कोऑपरेशन लेके पूरा रैंडम चेक्स और सरप्राइज चेक करके कोऑपरेटिव पब्लिक के कोऑपरेशन के साथ चेकअप 6 o'clock सरप्राइज चेक शुरू करे। तो इसमें हमको थोड़ा 63 व्हीकल्स सीज करे। पेपर्स वेरीफाई करने के बाद फिर लीगली अगर पेपर्स नहीं है तो फिर लीगली एक्शन वी विल टेक द एक्शन अगेंस्ट देम। और एक डायरी फॉर्म चेक करते वक्त ऑक्सीटोसिन का भी एक इंजेक्शन मिला हमको, वो भी एसओटी वाले सीज करे। ये लोकेलिटी में 3 सस्पेक्ट्स और 3 राउडी शीट्स भी उनका प्रेजेंस भी हम चेक कर लिए। पूरा पब्लिक का कोऑपरेशन मिला हमको इधर। कैंप लीडर्स भी हमारा साथ मिलके फिर ये पूरा ऑपरेशन करे हम यहाँ। ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए और पब्लिक का जो अपील है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ का पब्लिक बोल रहे थे इससे पहले ज़्यादा तक बाहर के लोग, क्योंकि ये बॉर्डरिंग कॉलोनी है, चंद्रायण गुट्टा के बॉर्डरिंग एरिया है ये बालापुर पुलिस स्टेशन का। बाहर के लोग आके इधर थोड़ा इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे भी थोड़ा गांजा सेलिंग में और बॉडीली ऑफेंसेस में छोटे छोटे चीज़ों पे चाकू लेके घूम रहे हैं, तो खूनी हो रहा है ऐसा बोल के अगर ऐसा कंप्लेंट करे तो फिर हम एक कोशिश करें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म के लिए, ज़्यादा तक लोगों को कॉन्फिडेंस लेने के लिए एक कोशिश करें। इसमें पूरा पब्लिक सपोर्ट के साथ हम ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कंडक्ट करें। थैंक यू। मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर दुबई सरमायाकारी के लिए मौजू मुकाम बन चुका है, जहां पर न सिर्फ कारोबार के लिए रकम लगाई जा सकती है बल्कि रिहायशी फ्लैट्स भी ख़रीदे जा सकते हैं। इस सिलसिले में शऊर बेदार करने और रिहायशी प्रोजेक्ट अजीज़ी विनाइस के बारे में तफसीलात बताने की गर्ज से हैदराबाद में एक इवेंट का अहतमाम किया गया। इस इवेंट में ख्वाहिशमंद इन्वेस्टर के अलावा दीगर ने शिरकत की और मालूमात हासिल की। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मीर मोहसिन अली के मुताबिक ऑर्गेनाइज़र वक़ार सैयद ने ये इवेंट मुनक़िद किया और प्रोजेक्ट के बारे में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि बुनियादी तौर पर 1.5 करोड़ की सरमायाकारी से इब्तिदा की जा सकती है, जबकि तमाम तर सहूलियात दी जा रही हैं। इस इवेंट में कई NRIs और अहम शख्सियतों बशमूल खलीक़ुर रहमान, अतीक़ सिद्दीकी, अली पटेल व दीगर ने शिरकत की। 100 से ज़ायद शुरका इस इवेंट में मौजूद थे। आज अजीज़ी विनाइस दुबई प्रोजेक्ट के लिए जो ताज डेक्कन में इवेंट रखा गया है और प्रेजेंट्स बाई वॉलमार्क रियल एस्टेट और हमारे दरमियान में है वक़ार साहब, बहुत पुराने एंड सीनियर रियल एस्टेट की कंपनी में वहाँ पे काम कर रहे थे। और आज कई लोगों का जितने भी यहाँ आए हैं सुबह से 10 बजे से जो इवेंट शुरू हुआ है, कई अच्छा रिस्पांस मिला है और हम उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और उन लोगोों के लिए ये मैसेज है जो फ्यूचर में आप और प्रेजेंट्स भी दुबई में प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं। 1.5 CR से प्रॉपर्टी स्टार्ट है। बाकी के दिए गए आपकी डिटेल्स एंड मोबाइल एंड वेबसाइट आपको मेंशन कर दिया जाएगा और इसके बारे में गूगल में भी चेक कर सकते हैं। और फिर एक बार उनका तहे दिल से शुक्रिया नॉल का
जो यहाँ के लोकल्स एंड NRIs भी हमको सपोर्ट करें। Yeah, please contact me on my Dubai number 05075755629. If you need anything in Dubai, please let me know. We will arrange all kind of properties ready and off plan. Thank you so much for today's event. आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद और मुज़फ़्फ़राबाद में तालाबों और झीलों की अराज़ियात के लिए हाइड्रा का क़याम, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने की वज़ाहत। क्या FTL अराज़ियात पर तामीर करदा सरकारी दफातर और इमलाक को तोड़ा जाएगा? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत से किया सवाल। गंडीपेट FTL अराजी पर हाइड्रा की निदामी कार्रवाइयाँ हक़ बजानिब, गंडीपेट वॉकर्स एसोसिएशन ने कार्रवाई का किया खैरमकदम। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम जारी, रॉयल कॉलोनी बालापुर में की गई नाकाबंदी। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।